term of GP, fourth term of geometric progression, is square of its second term. Fourth term of GP is square of second term. So fourth term of GP is nothing but the A4. Fourth term of AP is A4. Fourth term of GP is square of its second term. So this is given. Fourth term of GP is square of second term. And the first term is minus 3. First term is A. First term of GP is minus 3. First term is minus 3. Determine its seventh term. Here, question is find seventh term of geometric progression. Done? So first term A is given. If we consider the formula of GP, so that formula is like this. Nth term of geometric progression. Nth term of a geometric progression is A r raised to n minus 1. This is the formula to find the nth term of GP. Done? So here first term is required and common ratio is required. So here common ratio is not given. So here we are assuming let common ratio. What we are assuming? Common ratio. Common ratio of the given GP is R. Common ratio is R. First term is minus 3. Done? Here you have to find the seventh term. To find the seventh term, we are given that fourth term is the square of its second term. So what is fourth term? If we consider this formula, so fourth term is A R cube. Done? This is fourth term. Put n equal to 4. So it's A r raised to n minus 3, that is 4 minus 3 r cube. And A is first term, that is given. So our fourth term is minus 3 r cube. Done? Same way we can find the second term. Second term is put n equal to 2. So it's a r raised to 2 minus 1. So it's a r. Put a, that is minus 3r. Done? So now what we are given? We are given that fourth term is the square of second term. So what is fourth term? Fourth term is minus 3r cube. Minus 3r cube equal to square of second term. Second term is minus 3r. It's a minus 3r square. So minus 3r cube equal to this one is 9r square. Done? So from this r will be cut and r will be minus 3. So we can say 9 upon minus 3. So r is minus 3. Done? First term A is given. First term A is minus 3 is given. R is not given. And hence we find the value of this R. So now we are having both A and R. What is the value of A? First term A is given minus 3. And common ratio of GP is minus 3. Both are minus 3. So can we find the seventh term? Yes. So seventh term. Formula seventh term is A r raised to 7 minus 1. It's a r raised to 6. Put the values. A equal to minus 3 and r equal to minus 3 raised to 6. So it's a minus 3 raised to 7. Seventh term is minus 3 raised to 7. क्या होगा? जो भी होगा वो आपका आंसर है ना, फाइंड कर लेना. Done? So this is how you can solve your question number 4. आंसर बताओ मुझे इसका क्या आएगा. Question number 5. माइनस में आएगा, क्या आएगा? 2.87. Okay, very good. है ना? Seventh term is minus 2187 is the answer. चलो, question number 5. Here question is which term of the following sequence is, है ना, indicated terms आपको find करनी है. For example, question number 5 में अलग अलग parts है. So question number 5 first part. Here we are given that given GP is 2
2 root 2, 4. This is GP. So which term of this GP is 128? ये आपका क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, है ना। तो आपको ऐसा दिया है कि विच टर्म ऑफ दिस जीपी इज 128। ये जीपी को हम आगे एक्सपांड करेंगे, है ना, आगे तक जाएंगे तो ऐसे फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म ऐसे करके 128 आएगा कहीं पर भी। तो वो 128 कौन से नंबर की टर्म होगी, कौन से नंबर की टर्म मीन्स क्या फाइंड करना है, विच टर्म, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ द टर्म, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन फाइंड करना है। डन। यहाँ पर हमने आर फाइंड किया था, अभी यहाँ पर हमें एन फाइंड करना है। सो वेयर यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस टर्म, वो कौन से नंबर की टर्म है। हियर वी आर गिवन फर्स्ट टर्म ए, है ना, देख के ही पता चलता है कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है। सो ए इक्वल टू 2, जीपी इज गिवन, सो वी कैन इजिली फाइंड कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आर इक्वल टू दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो ले लेना है, इट्स अ 4/2√2, या फिर आप 2√2/2 भी ले सकते हो तो इजी रहेगा, है ना, 2√2/2, तो ये 2 कट, तो कॉमन रेशियो आपका हो गया √2। सो हियर a इक्वल टू 2 एंड कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू √2, बोथ आर गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इससे सिंपल क्या होगा, फॉर्मूला nth टर्म ऑफ gp इज a r रेज टू n माइनस 1। So let's say 128 is the nth term of GP. है ना, 128 is the nth term of given GP. So here we are taking nth term is 128. है ना, nth term is, let's say nth term is 128. So here first term A is 2, common ratio R is √2, ratio n minus 1. बस इसका सिंप्लीफिकेशन। तो ये 128 को डिवाइड करो 2 से, तो ये 64 होगा, और ये √2 का पावर 1/2 लिखेंगे, और 1/2 लिखेंगे, उसके ऊपर पावर में n माइनस 1 है, तो क्या होगा, ये √2 का 1/2 और ये n माइनस 1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो n माइनस 1/2 होगा। डन। नाउ अभी इन दोनों को कंपेयर करवाना है, तो 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि दोनों का बेस इक्वल करते हैं, तो यहाँ पर बेस 2 है, तो आपको क्या करना है, ये 64 को 2 के पावर में लिखना है ना, तो हम लिखेंगे 2⁶, 2⁶ इक्वल टू 2⁻n−1/2। अब ये दोनों पावर इक्वल हो गए, दोनों के बेस इक्वल है, तो वी कैन कंपेयर दिस एक्सपोनेंट्स एंड हेंस वी कैन से दैट दिस 6 इज नथिंग बट दी n-1/2। अभी एक लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल हो गया, जिसका सॉल्यूशन होगा 6 2 12 प्लस 1 n इक्वल टू 13। सो व्हाट इज n? It's the order of this number, है ना, 128। So your answer is 128 will be 13th term of this given GP. Clear? This 128 is the 13th term of this given GP. So this is how you can find the order of the term, कि वो कौन से नंबर की टर्म है। Done? So this is your question number A. Now same question, question number B. Same logic is there with different GP. B part. So here given GP is √3, 3, 3√3 up to infinite. So which term of this GP is 729, है ना, आगे वाला पार्ट कॉमन दिया है, which term of this given sequence, that is this is one GP is 729। तो अगेन क्या हम लिखेंगे, let 729 is the n term, let an equal to 729, a equal to √3, फर्स्ट टर्म इज √3, कॉमन रेशियो आर क्या होगा, आर 3/√3, 3/√3, तो वो होगा √3 ओनली, है ना। कॉमन रेशियो में आपको ध्यान रखना है, पहले की टर्म उसके बाद इसके आगे वाली टर्म करना है, √3/3 नहीं करना है, जैसे कॉमन डिफरेंस करते थे ना उसी हिसाब से। अभी ए है, आर है, ए है, तो एन मिलेगा। सो फॉर्मूला, अरे ये सब पेन बंद हो गई है। सो नाउ ए एन इक्वल टू a r raised to n minus 1. This is formula. Done. So now nth term is 729.
equal to a. First term is root 3. R common ratio, which is again root 3. n minus 1. n minus 1 है ना. इसको सिंप्लीफाई करो पहले. ये रूट थ्री का वन पावर और ये रूट थ्री का n माइनस वन पावर, दोनों का एडिशन होगा. इसको ऐसे लिखेंगे 729 इक्वल टू रूट थ्री का n पावर. यस, है ना. रूट थ्री देखो कॉमन बेस है, पावर वन और n माइनस वन है, तो दोनों का एडिशन करेंगे. सो एडिशन इज n माइनस वन प्लस वन, तो इट्स n. अभी रूट थ्री का 1/2 पावर लेंगे, तो 729 रूट कैंसल, सो इट्स 3 रेज टू n/2. तो अभी 729 को 3 के पावर में लिखना है, तो कौन सा पावर होगा? 3 रेज टू 6. 3 रेज टू 6 होगा शायद, है ना. सो 3 रेज टू 6 इज 729 and 3 raised to n/2. Base equal, so we can compare the exponent, and therefore we can write 6 equal to n/2, and therefore n is 12. So here we can say that this 729 is the 12th term of this GP. This 729 is the 12th term of this given GP. Done. Question number C. So now here given GP is 1/3, 1/9, 1/27 is 1/19683, है ना. सेम मेथड से लेकिन फ्रैक्शन में जीपी आ गई, सो ऐसा लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट है. सो विच टर्म ऑफ दिस जीपी इज 1/19683. सो अज्यूम कर ले, लेट n टर्म इज दिस गिवन टर्म. सो लेट nth term of GP is this one, 1/19683. This is our nth term. Done. Now first term 1/3, 1/3. What is common ratio? Common ratio is 1/9 upon 1/3. 3 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा, so it's a 1/3. 1/3. Done. So now again formula, same formula. फॉर्मूला बारी बारी से लिख रहा हूँ, आपको याद रह जाए. ए एन इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस वन, है ना. मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट रिपीटेशन. जितना भी आप रिपीट करेंगे उतना इजी रहेगा. nth टर्म इज 1/19683 इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म 1/3, आर कॉमन रेशियो 1/3, n माइनस वन. फिर से सेम लॉजिक आया, n माइनस वन, ये 1/3 का n माइनस वन पावर हो, ये 1/3 का 1 पावर, कंबाइन कर दे तो क्या होगा? 19683 इक्वल टू 1/3 रेस टू n. अभी ये बोलो, ये 19683 1/3 का ही कुछ पावर होने वाला है, कितना पावर हो सकता है? 3 का पावर 119,009 आएगा, देख लेना आप. डन. सो इट्स n इक्वल टू 9. n equal to 9. So here this given term is ninth term of this given GP. Done. So this is your question number 5. Now question number 6. Sixth question. Sixth question. For what value of x the numbers are in GP? For what value of x, that means you have to find the value of x, the numbers, which numbers? Minus 2/7, minus 2/7, x minus 7/2 are in GP. This is the question. For what value of x these given numbers are in GP? Done. So हमें फॉर्मूला पता है, फिर से मैं लिख रहा हूँ, है ना. ये आपको याद रखना है. if three numbers, which three numbers a b c are in GP, ये GP में होंगे तो क्या होगा? इसका कॉमन रेशियो इक्वल रहेगा. व्हाट इज कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो इज b अपॉन a.
है ना, हम b बाई ए ले कॉमन रेशियो, या फिर c बाई ए ले, c बाई b ले, इक्वल रहेगा, यस और नो? दिस इज आवर कॉमन रेशियो, है ना। कॉमन रेशियो तो हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों टर्म के लिए हमने कॉमन रेशियो कौन सा कंसिडर किया? पहले कंसिडर किया b अपॉन ए, या फिर हम ये भी ले सकते हैं c बाई बी, बिकॉज दीज थ्री टर्म्स आर इन जीपी। अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या मिलेगा? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, so here we are getting b square equal to ac. What we are getting? b square equal to ac. That means if middle term square, देखो इसका मतलब क्या हुआ? If middle term square is equal to multiplication of these two term, then we can say that these given three terms are in GP. Clear? Done? तो अभी ए बी सी की जगह पर ये है, इसमें क्या करना है? If these three terms are in GP, देखो दिया है, these three terms are in GP. What is the value of x? So x is nothing but the square, x square equal to multiplication of these two terms. Done? So now minus 2 by 7 x minus 7 by 2 are in GP. तो क्या कर सकते हैं हम? मिडल टर्म स्क्वायर, therefore we can write x square equal to multiplication of these two terms, minus 2 by 7 minus 7 by 2. So x square equal to 1, and hence x equal to plus or minus 1. X equal to plus or minus 1. Understood? हाँ बोलो। प्लस भी ले लो, माइनस भी ले लो, कॉमन रेशियो है ना, कांस्टेंट रहेगा, देख लो आप, है ना, चेक करो, प्लस ले लो माइनस ले लो, कॉमन रेशियो सेम रहेगा। देखो x की वैल्यू प्लस है, कॉमन रेशियो माइनस रहेगा। डन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने n टर्म निकालना सीख लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म, है ना। दूसरा फॉर्मूला जो जीपी के लिए था वो अप्लाई करना है। फाइंड द सम टू द इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द जीपी। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है, लेकिन n मतलब क्या है वो जीपी में आपको दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 7, हियर वी आर गिवन 0.15, 0.015, 0.0015, दिस इज जीपी एंड 20 टर्म्स ऐसा लिखा हुआ है। तो पहले तो आपको इसका मतलब समझना होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, है ना। 20 टर्म्स मतलब सम ऑफ 20 टर्म ऑफ दिस गिवन जीपी, है ना। 20 टर्म, आगे आपको इंस्ट्रक्शन में कॉमन इंस्ट्रक्शन है कि फाइंड द सम टू द इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ टर्म। तो इंडिकेटेड टर्म इज 20, दैट मींस यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म फॉर दिस गिवन जीपी। डन? और सम ऑफ n टर्म के लिए फॉर्मूला था, दो ऑप्शन आ रहे थे उसमें, है ना। देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सम ऑफ n टर्म के लिए फॉर्मूला था, sum of n term of GP is Sn equal to a 1 minus r raised to n upon 1 minus r when r is less than 1, फर्स्ट केस। और दूसरा फॉर्मूला, दैट मीन्स दूसरा फॉर्म, फॉर्मूला तो सेम है, इट्स r raised to n minus 1 upon r minus 1, ये होगा when r is greater than 1। दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है कि सेकंड फॉर्मूला यूज करना है, वो डिपेंड करेगा ये कंडीशन पर, है ना। आर इज कॉमन रेशियो, आपको कॉमन रेशियो निकालना है और चेक करना है कि कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से छोटी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। डन? सो टू फॉर्म ऑफ फॉर्मूला आर देयर, तो आपको सिलेक्शन करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। डन? सो first term is 0.15, so a और a is 0.15, ये मिल गया। अभी कॉमन रेशियो r is, है ना, सिंप्लीफाई आपको करके ही चेक करना है, डायरेक्ट देख के बता नहीं देना है कि ये होगा ये होगा, प्रिडिक्शन कुछ नहीं करना है। 0.015 अपॉन 0.15, क्या आंसर आएगा इसका? है 0.1, हाँ 1/10। डन? सो इसको हम बोलेंगे कि ये लेस देन 1 है ना, 1/10 इज लेस देन 1। डन?
1/10 इज लेस देन 1, सो आर लेस देन 1 आया, कौन सा फॉर्मूला आएगा? इसको हम फॉर्मूला 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, डन। हमारे पास आर भी है, ए भी है और एन भी है ना, सम ऑफ 20 टर्म्स एन इक्वल टू 20 भी है, सब कुछ है। तो क्या हम वेट करें, चलो निकालें। सम ऑफ एन टर्म्स, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो सम ऑफ 20 टर्म, पुट एन इक्वल टू 20, सो एस 20, ए फर्स्ट टर्म 0.15 into 1 minus r raised to n. So r is 1 by 10 raised to n. 1 minus 1 by 10 raised to n नहीं लिखना है, 20 है ना, n इक्वल टू 20 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस 1 बाई 10। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन है ना, तो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा देखो, 0.15 इट्स 15 अपॉन 100, ये डिनोमीटर की बात करें, इट्स 1 माइनस 1 बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इज 9, 9 बाई 10, और ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो 10 बाई 9, क्लियर। और इसको 1 माइनस 1 बाई 10, इसको कुछ नहीं होगा है ना, 0.1 करके भी आप छोड़ दो और उसका पावर 20, बस इसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो करो। और ये होगा 5 3 जा 5 2 जा, और ये 3 3 जा 9, 1/6, तो दिस इज इक्वल टू 1/6, और ये रहेगा 1 माइनस 0.1 रेस टू 20, सम ऑफ 20 टर्म, ये आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ? कोई डाउट? स्टूडेंट्स क्या आप लोग सुन पा रहे हो? नो डाउट। बस 2-3 स्टूडेंट्स मुझे आंसर दे रहे हैं, जितने भी आंसर आप नहीं देंगे ना, वो मैं आप जब क्लासरूम में आएंगे ना तब देख लूंगा, है ना, खुल्लम खुला धमकी। देखो आप √7, √21, 3√7 अप टू n टर्म्स। देखो यहाँ पर कोई फिक्स नंबर नहीं दिया है, हियर यू टू फाइंड सम ऑफ n टर्म, n मतलब कुछ भी टर्म, n की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो, जनरल फॉर्मूला आपका आएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है फर्स्ट टर्म a इक्वल टू √7, कॉमन रेशियो r इज 21 अपॉन √7, इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा। वो गोलकिया आया आज, गोलकिया अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई वेरी गुड, आ गया टू। हाँ बोलो क्या इसका आंसर आएगा, मैं भूल गया। हाँ √3, अभी मेरा दिमाग नहीं चलने वाला है। r इक्वल टू √3, अभी √3 1 से लेस देन होगा कि ग्रेटर देन? ग्रेटर देन, तो सम ऑफ n टर्म कौन सा फॉर्मूला आएगा, a r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, डन। वैल्यूज पुट करो, सम ऑफ n टर्म इक्वल टू a √7, और ये होगा √3 रेस टू n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, है ना। इसको आप इसे छोड़ना हो तो छोड़ सकते हो, लेकिन नए स्टैंडर्ड में आपने किसी ने पढ़ाया होगा कि डिनोमीटर में ऐसा कुछ आ जाए, तो आपके पास अगर टाइम है ना, तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो, है ना। रेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इरेशनल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग दिस इरेशनल नंबर्स बाय इट्स रेशनलाइजेशन फैक्टर, है ना, ऐसी डेफिनेशन थी कुछ। तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, √3 माइनस 1 है, √3 प्लस 1 होगा, तो इट्स √7, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, है ना। रेशनलाइजेशन किया, क्या किया हमने, रेशनलाइजेशन, √3 रेस टू n माइनस 1, इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसे होगा,
√7 इंटू √3+1, बस इसको साथ में लिखना है और कुछ नहीं। और इसका होगा √3² माइनस 1², √3² इज 3 और 1² 1, तो ये आएगा 2। और इसका सिंप्लीफिकेशन वो भी ऐसे होगा कि √3n लिखो, -1 करो और कुछ नहीं। So this is sum of n term of this given GP. Clear? क्लियर हो रहा है सब? वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब लोग आईआईटी में जाएंगे, ठीक है? आईआईटी रुड़की में जाएंगे, सबसे बेस्ट आईआईटी। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे में 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब एंड एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म निकालना है। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब। कंडीशन इज ए इज नॉट इक्वल टू -1, है ना? ए की वैल्यू -1 नहीं है और कुछ भी हो सकती है, तो क्या पता क्या होगी, है ना? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। सो ए इक्वल टू 1। कॉमन रेशियो आर इज -a अपॉन 1, सो इट्स अ -a। डन। तो अभी के लिए हम कंसिडर करेंगे कि a की वैल्यू है ना वो कोई इंटीजर होगी, पॉजिटिव इंटीजर, और हमारा कॉमन रेशियो r नेगेटिव आ रहा है, तो इसको हम लेंगे -1, लेस देन -1। या फिर ये a नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये दिखने में नेगेटिव ले रहा है तो वो फॉर्मूला हम आगे अप्लाई करेंगे। सो एस एन इक्वल टू a 1 माइनस r रेस टू n अपॉन 1 माइनस r। डन। अगर आपने r रेस टू n माइनस 1 ले लिया और इसकी साइन चेंज हो गई तो ये दोनों टर्म सेम चेंज हो जाएगी ना, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म 1 माइनस r, r क्या है हमारा माइनस a रेस टू n अपॉन 1 माइनस है, बस ये आंसर आ गया। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए, और ये 1 माइनस a रेस टू n। दिस इज अवर सम ऑफ n टर्म। अंडरस्टूड? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। So question number 10 is, here x cube, GP is x cube, x raised to 5, x raised to 7 up to n terms। देखो यहाँ फिर भी पता नहीं है कि x क्या होगा। If x is not equal to प्लस और -1, डन। तो ये भी इजी हो गया। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू एक्स क्यूब, कॉमन रेशियो r इज x raised to 5 बाई एक्स क्यूब, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? एक्स स्क्वायर आया। अभी ये पता चल गया कि ये कुछ भी ले लो प्लस माइनस, ये ग्रेटर देन 1 ही आने वाला है क्योंकि इसका 2 पावर है। कोई भी नंबर का 2 पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो सम ऑफ n टर्म a r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब r रेस टू n एक्स स्क्वायर रेस टू n माइनस 1 अपॉन r एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस ये आंसर हो गया। इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिखेंगे। सो एस एन इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होगा एक्स रेस टू 2n माइनस 1। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Evaluate sigma k equal to 1 to 11 2 plus 3 raised to k। कभी पढ़ा है ये सिग्मा? पहली बार आया। इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, है ना? सबमेशन, एडिशन ऑफ ऑल दिस टर्म, मतलब फ्रॉम k इक्वल टू 1 to 11।
So here this sigma indicates sum of total 11 terms. Sum of total 11 terms, and this is general term. So here we have to put first k equal to 1, then we have to put k equal to 2 up to 11, and we have to make the sum of all these term. तो कितना होगा देखो, पहले हम k equal to 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर k equal to 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगी 2 plus 3 raised to 1, so 2 plus 3. उसके बाद हम क्या करेंगे, k equal to 2 पुट करेंगे, और सिग्मा मतलब एडिशन, एडिशन। तो अभी सेकंड टर्म मिलेगी k इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो सेकंड टर्म होगी हमारे 2 प्लस 3 स्क्वायर, सिग्मा का मतलब एडिशन, तो प्लस करते जाएंगे, और उसके बाद पुट करेंगे k इक्वल टू 3, तो हमें थर्ड टर्म मिलेगी 2 प्लस 3 क्यू, डन। सिग्मा एडिशन कहाँ तक करेंगे, एडिशन 11 टर्म तक, कहाँ तक करेंगे 11 टर्म, तो ये होगा 2 प्लस 3 रेस टू 11, ये सिग्मा का मतलब हुआ। ये समझ में आ गया सबको? के इक्वल टू 1 से के इक्वल टू 11 तक टोटल 11 टर्म है, तो यहाँ पर आपको के की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे ना 1 टू 11 तक, तो आपको अलग अलग टर्म मिलेगी, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स मिली। उसका आपको क्या करना है, सिग्मा, सिग्मा मतलब एडिशन, तो ये प्लस साइन है ना, ये सिग्मा से है, क्लियर? तो अभी आप देखो इसमें आप है ना सब टर्म्स, ऑल दी टर्म्स आर इन एडिशन। देखो टोटल कितनी टर्म है, आपको बताएगा मुझे यहाँ पर, ये आप काउंट करेंगे टोटल कितनी टर्म्स होगी, 11 टर्म होगी, कितनी होगी 11। अभी यहाँ पर मैं देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, ये 2 का एडिशन हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, 2 प्लस 2 प्लस 2, कितने टाइम हो रहा है 11 टाइम्स, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 11 टाइम्स 2 का एडिशन हुआ है ना, इसको मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, प्लस इसको मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू 3 रेस टू 11, तो 3 प्लस 3 रेस टू 2 प्लस 3 क्यूब प्लस 3 रेस टू 4, कहाँ तक, अप टू 3 रेस टू 11। ये समझ में आया? तो 2 का 2 के साथ सम 11 टाइम्स कितना होगा, 2 का 2 के साथ सम 2 बार करूँ ना, 2 2 जा 4 होगा, 2 का 2 के साथ एडिशन 3 टाइम्स करूँ ना, तो 2 3 जा 6 होगा, सो 2 का 2 के साथ एडिशन 11 टाइम्स करो तो कितना होगा, 11 2 जा 22, 22 होगा, so this will be 22 plus this one is 3 raised to 1 plus 3 square plus 3 cube, this is sum of 11 terms up to 3 raised to 11. So for this sequence, we can say this is GP with first term A equal to 1, common ratio R equal to 3, and number of terms N equal to 1, N equal to 11. क्लियर? देखो इसमें 11 टर्म है, फर्स्ट रेशियो फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 1 है और कॉमन रेशियो 3 है, तो इसके सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला में आएगा, है ना, सम ऑफ n टर्म इसका होगा, बोलो। नहीं, आर मैंने फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म लिया, इसका मतलब क्या हुआ, 3 रेस टू 1 प्लस एडिशन सम ऑफ 11 टर्म है, और 11 टर्म्स, वो जो टर्म्स है वो कौन सी है, जीपी की टर्म है, देखो 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, कॉमन रेशियो ले लो, कांस्टेंट आएगा, डन। सो आर इज ग्रेटर देन 1, सो सम ऑफ एन टर्म ऑफ दिस जीपी, ये जीपी है हमारी, है ना, इसको आप ऐसे लिखा हुआ देखेंगे तो आपको लगेगा जीपी है, तो इसको प्लस के साइन लिखेंगे तो सम ऑफ एन टर्म ही हुआ, तो दिस इज सम ऑफ एन टर्म, दिस इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? ए 1 3 रेस टू 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, सो सम ऑफ 11 टर्म इज 1 बाई 2, और ए हमारा क्या है, ए 3 है, ए 3 है ना, फर्स्ट टर्म 3 है, तो ये 3 है 3, तो दिस इज 3 बाई 2, 3 रेस टू 11 माइनस 1, ये सम ऑफ 11 टर्म हुआ इतना, और आगे 22 तो था, तो पूरा आंसर क्या आएगा, सम ऑफ एन टर्म, दैट इज सिग्मा के इक्वल टू 1 टू 11 2 प्लस 3 रेस टू के इक्वल टू 22 प्लस 3 by 2 3 raised to 11 minus 1 is the answer. Clear students? इसमें किसी को कोई डाउट?